Assalamu alaikum everyone. Welcome to Bushra's Medical Insight, your one-stop destination for simplified medical concept. So, as in previous video, we have discussed an overview of coagulation of blood. So, this video will be the detailed explanation of coagulation of blood. So, let's get started. Grab your notes. So, in previous video, we have discussed the term hemostasis. Now, see, what is hemostasis? The sequence of response that stop bleeding means a series of action is occurring in our body when our body vessels damages. ठीक है, जो भी एक लाइन से एक सीरीज से जो भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है to stop the bleeding, that term is called the hemostasis. ठीक है, and this hemostasis response should be quick, localized and careful controlled. Localized means suppose ये आपकी वेसल्स है, यहाँ पे आपके साइट ऑफ इंजुरी है, और पर्टिकुलर जो सीरीज ऑफ एक्शन और रिएक्शंस हो रहे हैं वो यही होना चाहिए और पर्टिकुलर इसमें, ठीक है, दैट टर्म इज मीन लोकलाइज्ड. सो hemostasis is the series of actions or reactions, yeah, to stop bleeding. ठीक है, and this response should be quick, localized and carefully controlled. Clear है? Now see, to reduce the blood loss, we have the three mechanisms. First is vascular spasm, second is platelet plug formation, third is blood clotting. ठीक है, this vascular spasm means the contraction of the vessels. In the vascular spasm, what happens? The blood vessels diameter will reduce. There will be the constriction. यहाँ पे हमारी blood vessels है. This will narrow. Diameter will get reduced. ठीक है. Now the platelet plug formation. Platelet plug formation is the accumulation and large number of platelets. A large number of platelets will come at the site of injury and attach to there to prevent the blood loss. ठीक है, and this is very efficient to prevent the blood loss. ठीक है, blood clotting में there are several factors which contribute to prevent the blood loss. Now see, this hemostatic method prevents hemorrhage from small vessels, but if blood loss is from extensive vessels, then it requires medical intervention. ठीक है, ये जो hemostatic method है ये सिर्फ small vessels के ही blood loss को prevent करेगी. In case if the blood loss is from the extensive vessels, then it should require the medical intervention. Means वो blood clotting के mechanism से इतने efficiently वो चीज prevent नहीं होगी. We have to take a medical intervention. ठीक है. Now see, here are the three steps. First is vascular spasm. See, the diameter is decreasing so that the flow of blood will reduce. ठीक है. Then the platelet plug formation. See, these platelets are accumulated at the site of injury. They form the collagen fibers. Now third is blood clotting. In blood clotting, all the factors contribute to convert that in fibrin. ठीक है. Now let's see one by one in detail. Vascular spasm. It is the contraction of circularly related smooth
मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है वो इमीडिएटली होगा, ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं कि 10 मिनट 5 मिनट या 2 मिनट बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, उतनी देर में भी कितना भी ब्लड लॉस हो सकता है ना। सो दिस मस्कुलर स्पैज्म हैज टू बी इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है, दे हैव टू इमीडिएटली कॉन्ट्राडिक्ट द स्मूथ मसल्स whenever the arteries and arterioles are damaged, ठीक है। और ये क्यों इमीडिएटली होता है, ताकि वो बाकी जो हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म्स है उनको वो एक टाइम दे सके और ऑपरेशन, ठीक है। सी यू कैन सी दिस डायग्राम, this arrow indicates the diameter is reducing, indicates that diameter is reducing, ठीक है। Now है platelet plug formation. Now what is platelet plug formation? There will be the platelets accumulation, ठीक है, the accumulation and attachment of large number of platelets form a mass which we called as platelet plug, and this is very effective in case of small vessels. देखो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे होगा, पहले एट द साइट ऑफ इंजुरी प्लेटलेट आएगा, ठीक है, प्लेटलेट आके उस पर चिपकेगा, देयर विल बी प्लेटलेट एडिशन, एडिशन मींस द अटैच, दे विल गेट अटैच, ठीक है। आफ्टर दैट द प्लेटलेट विल रिलीज सम फैक्टर्स, ठीक है, जैसे कि एटीपी हो गया, थ्रोम्बोजेन A2 हो गया, क्या हो गया, एडीपी प्लस थ्रोम्बोजेन A2 हो गया, ये सारे फैक्टर्स को वो रिलीज करेगा ताकि प्लेटलेट रिएक्शन को एक्टिवेट कर सके, ठीक है। फिर वो एक्टिवेशन हो जाएगा, फिर वहां पे प्लेटलेट्स के बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स विल कम एंड एग्रीगेट, ठीक है, एंड अल्टीमेटली इट विल फॉर्म अ प्लग, जो एंटायर एरिया एंटायर साइट ऑफ इंजुरी विल गेट कवर्ड, ठीक है। और ये जो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेशन हो रहा है, अब यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब बहुत सारे प्लेटलेट्स कैसे दूसरे प्लेटलेट्स को वो कैसे इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लेटलेट है वो स्टिकी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, स्टिकी हो जा रहा है, दैट वाई दे आर इनवाइटिंग द अदर प्लेटलेट्स टू स्टिक, ठीक है। सी इन दिस प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, यहाँ पे प्लेटलेट एडिशन हुआ, यहाँ पे प्लेटलेट आया, अटैच हुआ, यहाँ पे देखो डेंड्राइन लाइक स्ट्रक्चर बनाया प्लेटलेट्स ने, मतलब उसके एक्टिवेशन हुआ बाय रिलीजिंग द एटीपी थ्रोम्बोजेन A2, ठीक है, एक्टिवेशन रिलीज फैक्टर, now the rest platelets are coming and attached, ultimately they are forming a plug, ultimately they are forming a plug, ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग में क्या होगा, अल्टीमेटली हमें चाहिए फिब्रिन, एट द साइट ऑफ इंजुरी हमें फिब्रिन का फॉर्मेशन करना है। अब वो फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन के लिए बहुत सारे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे जो अल्टीमेटली अक्यूमुलेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन थ्रेड्स, ऐसे फिब्रिन थ्रेड्स लाइक बनेंगे जिससे वो ब्लड लॉस रुके, प्रिवेंट हो, ठीक है। Now this is the complex cassette. Okay, the reason I have put this picture is इसमें क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा रिएक्शंस का, जैसे कि A है, A ने रिएक्ट किया B फिर C, the number of products are increasing, which means the amplification is there, ठीक है, and this amplification term means here the
कैसेट मीन्स हियर द कैसेट, ठीक है। और सी ये वाटरफॉल जो स्टेयर्स वाइज है, मतलब ये वाटरफॉल भी उनका स्टेयर्स वाइज ही हो रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कैसेट, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में एंजाइमेटिक रिएक्शन कैसे पैटर्न में हो रहा है, कैसेट फॉर्म में हो रहा है। ये नीट पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। It is a complex cassette of enzymatic reaction in which each clothing factor activates many molecules of next one in the complete sequence. Chalo. Now these are the clothing factors, sorry, and they are always written in Roman numbers. In Roman numbers. Like this 1, 2, 3, 4. And there are total 13 factors, ठीक है। और मैक्सिमम फैक्टर्स कहाँ से बन रहे हैं, लिवर। मैक्सिमम फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, लिवर, ठीक है। चलो these are 9, 10th, 11th, 12th, 13, total 13 factors. Now अब ब्लड क्लॉटिंग में आते हैं दो मेन पाथवेज। दे आर द टू मेन pathways, which is extrinsic and intrinsic pathway, ठीक है। This both will activate the X factor. This will make prothrombinase. This prothrombinase will make inactive prothrombin. Then this will make thrombin, fibrinogen, and then ultimately fibrin. So there are mainly two pathways, but we can consider three. First is extrinsic pathway से we will ultimately make the prothrombinase. This is the first pathway. Second is intrinsic pathway, ये भी ultimately prothrombase ही बनाएगा. And third is this, which is called as common pathway. Common pathway, ठीक है। Prothrombinase converts prothrombin to thrombin, ठीक है, and thrombin converts fibrinogen to fibrin. This is the common pathway, ठीक है। इसको हम और अच्छे से देखते हैं। Let's see extrinsic pathway, ठीक है। Extrinsic pathway intrinsic pathway से rapid होता है as compared to intrinsic, ठीक है। इसमें क्या होगा, see अब the word extrinsic means we can consider it outside, ठीक है। बाहर की तरफ से एक टिश्यू, मतलब बाहर की तरफ से कुछ हो रहा है जिससे हमारा टिश्यू ट्रॉमेटाइज या टिश्यू डैमेज हो रहा है। दैट डैमेज टिश्यू विल रिलीज अ फैक्टर, टिश्यू फैक्टर, ठीक है। सी and after that tissue factor there will be the activation of X with the help of calcium. See ये factor, then ultimately with again the presence of calcium they will make prothrombinase, ठीक है। It occurs rapidly. It has fewer steps. Which steps? Tissue trauma, then release of tissue factor. See this TF is tissue factor, ठीक है। Then calcium, with the presence of calcium they activated X factor, then again with calcium and prothrombinase, ठीक है। This tissue factor, हाँ
One more thing, this tissue factor is also called as thromboplastin. Thromboplastin. ठीक है, which leads into the blood from cell outside the vessel and again initiates the formation of prothrombinase. Next is intrinsic inside. It is more complex and occurs slowly. यहाँ पे slowly क्यों हो रहा है? See, अंदर ही when this suppose this factor hit this factor, ठीक है, get hidden, so because of the unnecessary hindrance of other factors वहाँ पे क्या होगा? कोलेजन फाइबर का एक्सपोजर हो जाएगा, ठीक है, उनमें जो एंडोथेलियल सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगे. ओके, नाउ अल्टीमेटली द प्लेटलेट्स विल गेट डैमेज्ड. ठीक है, नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ in the presence of calcium ion there will be the activation of X factor, then same after X factor then in the presence of calcium ion prothrombinase. ठीक है, this complex you can see. Cloth retraction. Now see, एक फाइब्रिन क्लॉथ तो बन गया हमारे वेसल पे, ठीक है, हमारे साइट ऑफ इंजुरी पे, हमारे वेसल पे क्लॉथ तो हमारा बन गया. अब वो क्लॉथ ऑल टाइम तो वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, तो टू अब उसके नीचे जो हमारी ब्लड वेसल्स है हमें उसका रिपेयरिंग करनी है, ठीक है. नाउ टू रिपेयर देयर आर द क्लॉथ रिट्रैक्शन. क्या होगा? जो फिब्रिन क्लॉथ है, जो ऐसे फिब्रिन जो क्लॉथ बन रहा है वो बहुत ही लूज होता है, तो वो क्या करेगा? जो ब्लड वेसल्स है उनके जो एजेस है वो अपनी तरफ खींचेगा, मतलब वो एक दूसरे से पास में खींचेगा, ठीक है, ताकि वहां पे जो फर्दर डैमेज का जो रिस्क है, मतलब वो और बढ़ना नहीं चाहिए, मतलब और क्या बोल देंगे, फैलना नहीं चाहिए. तो टू प्रिवेंट दैट दे पुल टुगेदर, ठीक है. सो द कॉन्सोडिक्शन एंड टाइटनिंग ऑफ फाइब्रिन क्लॉथ रेफर्स टू द क्लॉथ रिट्रैक्शन. ठीक है, क्या करेगा? डैमेज वेसल्स की जो एजेस है, सी दिस एरोज यू कैन सी, ये जो एजेस है वो अपनी तरफ उसको ये करेगा, पुल करेगा, विच अल्टीमेटली डिक्रीज द रिस्क ऑफ फ्यूचर डैमेज. ऐसा नहीं कि वो और बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं होना, हमें कम करना है, ठीक है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन के? ठीक है, इन सब में विटामिन के का क्या रोल है? इट इज एसेंशियल, क्योंकि जो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो लिवर में सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, और अगर किसी के पास विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो उनमें जो कोआगुलेशन का जो फैक्टर्स है वो ना उस वजह से वो लोग सफर करेंगे, क्योंकि अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स विल स्लो डाउन, ठीक है, absorption of lipids will slow down and which ultimately experience them to uncontrolled bleeding as a consequence of vitamin K deficiency. See this net like structure fibrin, और उसमें क्या entangled है? RBC. क्या entangled है? RBC. And this is fibrin thread. ठीक है, हमें पता है prothrombin will make thrombin will make fibrinogen and then fibrin. तो इसी की सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन के चाहिए, ठीक है, फिब्रिन. वन मोर थिंग, हमने ये चीज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर था उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्रो और पीछे ओजन आए, दे ऑलवेज रेफर टू एज इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, जैसे कि ओजन और ये प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन दे आर इन द इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, वेयर एज द थ्रोम्बिन एंड फिब्रिन आर इन एक्टिव फॉर्म, ठीक है. नेक्स्ट इज अब how we can control this hemostasis control mechanism due to the dissolution of that cloth. See,
यू कैन सी अब क्लॉथ है, रिपेयर हो गया है, अब हमें उसको डिसॉल्व करना है, उसका रिट्रैक्शन करना है, उसको हटाना है, ताकि जो हीमोस्टैटिक जो हमारा मैकेनिज्म है वो कंट्रोल रहे। तो hemostatic control mechanism is nothing but the dissolution of that small inappropriate cloth जो हमारे साइट ऑफ इंजुरी में बना था। ठीक है, कब हम उसको डिसॉल्व करेंगे? once the damage is repaired and here the term is fibrinolysis। अगेन हम लोग क्या करेंगे? वर्ड डिवाइड करेंगे, fibrinolysis। lysis means breakdown and fibrino means fibrin thread means breakdown of fibrin threads। See, first इधर सिक्स इज थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस मीन्स जहाँ पे कोई हमारे ब्लड वेसल में कोई भी इंजुरी नहीं है, सपोज देयर इज नो इंजुरी बट स्टिल जो क्लॉट खुद से बना रहा है, ठीक है, दैट विल रेफर्स एज थ्रोम्बोसिस। और जो क्लॉट खुद से बना रहा है विच वी कॉल एज थ्रोम्बस। सी, कोई इंजुरी नहीं है, देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स का अक्यूमुलेशन हो रहा है, and it may dissolve spontaneously but it is remain intact when thrombolytic agents are injected into the blood। और हम इस क्लॉथ को कैसे अनटैंगल करेंगे, कैसे डिसॉल्व करेंगे? कुछ थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स को हम इंजेक्ट करेंगे। क्या होते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स? ये क्या करेंगे? थ्रोम्बस को ब्रेक करेंगे ताकि क्लॉथ को रिजॉल्व कर सके। The common agents are streptokinase, second is TPA, tissue plasminogen activator, and what will happen if this thrombosis will occur? It ultimately leads to heart attack। Why? अगर ऐसा क्लॉथ, ऐसा accumulation जो अगर हमारे कोरोनरी वेसल्स या कोरोनरी आर्टरी में हुआ, जिससे हमारे ब्लड में जो फ्लो है ब्लड का वो रिड्यूस होगा। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि देखो यहाँ की जो सरफेस एरिया आधी जो है वो क्लॉथ में ही ऑक्यूपाइड हो गई है, जिस वजह से इतनी ही एरिया रिमेन कर रही है। ठीक है, देयर इज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया इज रिमेनिंग। so how much will blood will loss will speed up। so ultimately उनकी जो ब्लड फ्लो की जो स्पीड है वो भी कम होगी, तो जो हार्ट पे जितना ब्लड जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा है, which leads to heart attack, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोagulation ऑफ ब्लड खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका डाउट बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।